जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेसन में। आज हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि हमारे क्लास 10th और क्लास 9th के एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सब जानते हैं कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 20 4 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिनका टोटल मार्क्स में वेटेज होता है 16 मार्क्स। तो हम आज फर्स्ट चैप्टर के कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर्स। नाउ व्हाट डज क्वेश्चन सेज? क्वेश्चन सेज to enhance the reading skills of grade 10th students, the school nominates you and two of your friends to set up a library. There are two sections. One is section A and one is section B of class 10th, grade 10th. There are 32 students in section A and 36 students in section B. So this is a situation where we have a class in two sections. In first section we have 32 students and in second section we have 36 students, and we have to set up a class library for these classes. Now let us come forward. Now what is question number 1? This is, the question says, what is minimum number of books you will acquire for class library so that they can be distributed equally among students of section A and section B. Now what should be the minimum number of books that we shall purchase or we shall borrow or we shall acquire for our library so that these books can be equally shared in students among students of class 10th section A and section B. अब देखो बच्चों, इसमें बहुत ध्यान से देखना कि नंबर ऑफ बुक्स, क्योंकि हम जानते हैं क्लास 10th में हमारे पास 32 स्टूडेंट्स हैं और क्लास सेक्शन बी में हमारे पास 36 स्टूडेंट हैं। सेक्शन ए में 32, सेक्शन ए 32, सेक्शन बी 36। अब हम जब बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्शन ए में, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो नंबर ऑफ बुक्स इस तरह से होनी चाहिए कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो 32 स्टूडेंट में। अगर हम हर एक बच्चे को एक एक बुक देते हैं तो हमारे पास टोटल कितनी बुक्स होनी चाहिए? 32, सो दैट ईच स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए कैन गेट 1 बुक। अगर हम हर एक बच्चे को 2-2 किताबें देते हैं तो हमारे पास 64 बुक्स होने चाहिए। अगर हम हर एक बच्चे को 3-3 किताबें इशू करते हैं तो हमारे पास 96 बुक्स होनी चाहिए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सेक्शन ए के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स 32 और 64 और 96 और 4 2 8, 4 3 12, इस तरह का आना चाहिए। हम ध्यान से देखेंगे इनको तो ये सभी नंबर्स 32 के मल्टीपल्स हैं। नाउ फॉर सेक्शन बी इन सेम वे वी शुड हैव एटलीस्ट 36 बुक्स और इट्स डबल, दैट इज 72, और इट्स 3 टाइम्स, that is 3 6 18 and 3 3 9, 9 plus 1 10 and 4 6 इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये बुक्स होनी चाहिए। ये भी मल्टीपल्स हैं, लेकिन हमको नंबर ऑफ बुक्स दोनों के लिए कॉमनली हमें एक्वायर करनी है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड सच अ नंबर which is a multiple of 32 and also the multiple of 36, and this should be minimum. So what is the required number? That is common multiple of 32 and 36, and because this should be minimum, so it should be LCM, least common multiple of 32 and 36. Now this is the answer of this question, that we have to find LCM of 32 and 36. To find that, we can easily factorize these number. 32 can be factorized as 2 raised to power 5, because we know that 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, and 36 can be prime factorized as, first of all we will factorize it like 12 to the 36, and we know 2 to the 4 and 4 3 the 12 and 12 3 the 36, to 2 raised to power 2 and 3 raised to power 2. Now what should be the LCM? We know that when we want to have LCM, we take all the prime factors involved in
प्राइम फैक्टराइजेशन हम सबको ले लेते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं जो कि ये बनेगी। तो एलसीएम आ जाएगा 32 इंटू 9 दैट इज़ 9 2 ज़ा 18 और ये कितना हो जाएगा 288। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट वी शैल एक्वायर for class library is 288 because when we distribute 288 books amongst 32 students, because in section A there are 32 students, when we distribute these 288 books, each student will get 9 books, and when we distribute 36 in 288 books amongst 36 students, each student will get 8 books. So our condition will be fulfilled. और यही हमें पूछा गया था कि what is the minimum number of books so that each student get equal number of books. So this is the answer of our first question. Now let us do second question. What is second question? If the product of two positive integer is equal to the product of their HCF. If the product of two positive integer is equal to the product of HCF and LCM, then HCF of what? इसका हमें HCF निकालना है। उसने कहा एक नंबर है A, एक नंबर है B, अगर A और B का प्रोडक्ट उनके HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB के इक्वल है, तो हमें निकालना है यहाँ पर HCF ऑफ 32 और 36। तो HCF ऑफ 32 और 36 हमें पता करना है और LCM हमने अभी अभी निकाला है। कितना निकाला है इनका 288 फ्रॉम ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वल टू 32 इंटू 36। सो दिस इज एन इक्वेशन एंड इट कैन बी सॉल्व एज 32 अपॉन 36 इंटू 36 अपॉन 288 is equal to SCF of 32 and 36. Now we know that it can be divided by 32 and 36 both. 288 can be divided by both number. If we divide 288 by 36, we shall get 8, and this 8 can divide this 42 as 4. So the HCF of 32 and 36 is 4. इनका HCF 4 आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। हमने अभी 32 के फैक्टर्स निकाले थे 2⁵ और 36 के फैक्टर निकाले थे 2⁵2 एंड 3⁵2। और हम जानते हैं हमें जब HCF निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर आता है उसको लेते हैं। तो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और उसकी लीस्ट पावर लेते हैं, छोटी वाली पावर लेते हैं। तो छोटी वाली पावर आ जाएगी 2⁵2। सो द आंसर इज 4। नाउ let us come to the next question of this item. The LCM of 60, 84 and 108 will be what? सेम मेथड करते हैं यहाँ पर हम इन तीनों के तीनों नंबर्स को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। दिस कैन बी रिटन एज दिस एंड 2 5s are 10, 2 3s are 6, so 60 is equal to 2⁵2 into 3 into 5। ठीक है। Now 84, we know that 84 is equal to this, and this can be written as 2⁵2 that is 4, 4 3s are 12 and 12 7s are 84। 108 हम जानते हैं इतना होता है 108। तो 12 can be written as this and this can be written as 3⁵2, so this will be 2⁵2 and 3⁵3। ठीक है। अब निकालना है LCM। तो मैंने बताया था आपको पहले भी, LCM के लिए क्या करना होता है, जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उन सब को लेते हैं। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, उसके बाद 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। फिर उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है और यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है और लास्ट वाले में 3 की पावर 3 है, तो हम लेंगे 3 की पावर 3। और 5 और 7 की पावर दोनों जगह 1 1 है, तो ये ले लेंगे। तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 27, 5 into 7।
और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा, हाँ एक इसमें छोटी सी गलती हुई है, यहाँ पर 2 कितना है 2 था, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 4। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई ऑल दिस 4 इंटू 27 इंटू 5 इंटू 7, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ये तो मिल जाएगा 35 और ये 4 इंटू 27 will become 108 and 100 into 35 that will become 3780. so this is the correct answer. ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी पहले, 2 को हमने 8 लिखा था, एक्चुअली ये 4 है. नाउ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दिस नंबर विल बी इक्वल टू व्हाट? अब देखिए हमने इनका LCM निकाल दिया, अब हमें इनका HCF निकालना है. ठीक है, तो HCF और LCM का फिर हमें प्रोडक्ट निकालना है. तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? वी नो दैट टू फाइंड HCF ऑफ 60, 84 और 108 हम इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं. तो 2 जो है वो 60 के फैक्टराइजेशन में भी आ रहा है, 2 जो फैक्टर है वो 60 में भी आ रहा है, 84 में भी आ रहा है और 108 में भी आ रहा है. और लीस्ट पावर कितनी है इसकी? यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 ले लेंगे. ठीक, अब जिसके अलावा जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 3 आ रहा है. 3 यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी आया था, लेकिन लीस्ट पावर कितनी है उसकी? 1, तो ले लेंगे. अब इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर में है नहीं, तो ये बन जाएगा 12. HCF बन जाएगा 12. अब उसने पूछा है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 12 इंटू 3780 और ये आएगा 45. अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये आएगा 45360. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको ध्यान रखना है बच्चों कि हम जब HCF लेते हैं तो हम कॉमन फैक्टर्स को ढूंढते हैं CF, और उसमें हम जो लीस्ट पावर है वो देखते हैं. ठीक है, LCM में क्या होता है, हम सभी फैक्टर्स को ले लेते हैं, जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 है, 3 है, 5 है, जो जहाँ आ रहा है उसको सबको ले लेंगे और उसमें भी देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है. तो ये छोटा सा फ़र्क है HCM और LCM में. तो ये इसका आंसर आ जाएगा. नाउ लेट अस डू फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, 108 को हमने ऊपर भी फैक्टराइज किया था, हम जानते हैं 108 होता है 12 इंटू 9 एंड 12 कैन बी रिटन एज 2 to the 4, 4 3 is 12 into 9. So 3 3 is 9. So it is 2 raised to power 2, 3 raised to power 2, 2 to the 4 एंड यहाँ पर एक 9 और आएगा बिकॉज 2 to the 4, 4 3 is 12 और ये वाला 9 बन जाएगा 3 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 2 raised to power 3. 12 ऊपर भी किया था हमने, यहाँ पर भी किया था इसको, तो ये इसका आंसर है 2 raised to power 3, 3 raised to power 2. तो कौन सा ऑप्शन होगा? यस, ऑप्शन नंबर ए, 2 raised to power 3 and 3 raised to power 2. So these are the answer of first question. Now let us see another question, that is case study based question 2 from this chapter, real number. That is our first chapter. Question है, a mathematics exhibition is being conducted in your school and one of your friends is making a model of factor tree. You know what is factor tree? हम प्राइमरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. फैक्टर ट्री कैसे होता है? कुछ इस तरह का होता है कि 12 कैन बी डिवाइड इन 2 ब्रांचेस, 6 to the 12, this 6 कैन बी एक्सपेंडेड एज 3 into 2 एंड दिस 2 कैन बी डन एज 2 into 1. तो कुछ इस तरह का फैक्टर ट्री बन जाता है. तो ये हमने किया है, छोटी क्लासेस में हमने इसको किया है. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नंबर हमारे पास लार्ज रहेंगे और ये ध्यान रखना है कि हमने सारे के सारे प्राइम फैक्टर ढूंढ लेने हैं. नाउ and ask for your help completing a quiz for the audience. Observe the following factor tree and answer the following. Now इस इमेज का वजह था, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हम डायरेक्टली फैक्टर ट्री में इसको देखते हैं. ना देखिए यहाँ पर ये 253 को उसने ब्रेक किया है 2 पार्ट में.
Now factor tree means this 11 into z should be equal to 253. So what is the value of z? That will be 253 upon 11. 253 upon 11, and when we divide 253 by 11 we will get 23, because 11 2s are 22, 3 remainder 33, 11 3s are 23. So z is equal to 23 आ गया. In a similar way, this 2783, that is 2783, will be equal to y into this 253, बिकॉज इसके दो पार्ट किए गए यहाँ पर. अब क्योंकि इसके दो पार्ट हो गए हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो इतना आएगा. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, that will be equal to 2783 upon 253. 2783 upon 253, and when we divide this we shall get 11. So y will be equal to 11. ठीक है, z निकल गया, y निकल गया. अब निकालना है हमें x. तो बिल्कुल उसी तरह चलते हैं फैक्टर ट्री को बढ़ाते हुए. ठीक है, अब क्योंकि x की दो ब्रांचेस ये हैं, इट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर x आना चाहिए. सो x की वैल्यू हो जाएगी this into 5, and 2783 into 5 will be equal to 13,953. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको. 5 3 15, 5 8 40 plus 1 41, 4 carry, 5 7 35 plus 4 39, and 3 carry, 5 2 10 plus 3 30. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13915. So we have got the value of x, value of y, and value of z. अपना क्वेश्चन देखते हैं आगे. What will be the value of x? तो वैल्यू ऑफ x कितनी निकाली हमारी हमने? क्या निकाली? वैल्यू ऑफ x. What will be the value of y? Look at the question. वैल्यू ऑफ y कितनी आई? 11. So the answer is 11. What is the value of z? हमने निकाली 23. So the answer is 23. आसान था. आगे बढ़ते हैं. According to fundamental theorem of arithmetic, this number is a composite number or a prime number, neither prime nor composite even number. Now recall this theorem. What does it says? Fundamental theorem of arithmetic says every composite number can be written as product of its prime factorization, and this prime factorization is unique. For example, we know that 4 is first composite number. Now what is composite number? A composite number is a number which has more than two factors, and a prime number is a number which has only two factors. So if we prime factorize 4, it is 2 into 2, and we know that 4 has 3 factors. So this is first composite number 4, because it has more than two factors. अब इस क्वेश्चन में हमें डिसाइड करना है कि क्या 13,915 वो कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है. देखो, अगर तो प्राइम नंबर हुआ तो वो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, और 1 के अलावा. ठीक है, और कंपोजिट नंबर हुआ तो वो 1 अपने अलावा, मतलब उसके एक फैक्टर तो 1 हो जाएगा, और एक फैक्टर 13,915 होगा, और इसके अलावा कम से कम एक फैक्टर और मिलेगा. अब ध्यान से इस नंबर को देखो, बहुत कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें. इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है. और हमने छोटी क्लास में डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं. डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 5 आ जाए तो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा. इट मीन्स दिस नंबर 13,915 is easily divisible by 5, and when we divide this by 5, the answer that we get is 2783. So it means it has another factor 5. और भी इसके फैक्टर हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमने पीछे लिखा है ना, क्या लिखा है पीछे? 2783 into 5. तो इसका मतलब 2783 is also its factor, 5 is its factor, 1 is its factor, and the number itself is a factor. So at least 4 factor तो हमने निकाल दिए. So our condition that
दिस नंबर इज़ अ काइंड ऑफ कंपोजिट नंबर। और वैसे भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कंपोजिट नंबर के बारे में ही बात करती है। तो हमारा आंसर है कंपोजिट नंबर बिकॉज दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर 13915 विल बी व्हाट। तो इसको देखने के लिए इस फैक्टर ट्री को देखिए, मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ नज़र आए कि हमने 1395 को कैसे कैसे फैक्टराइज किया। तो 1395 को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमें जो भी प्राइम नंबर मिले वो सभी प्राइम नंबर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं। देखो ये तो x का है, अब यहाँ मिला हमें 5 और मिला 2783। क्या मिला? 2783 पहले से दिया हुआ था। जब इस 2783 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो हमें मिला 11 और मिला 253। और फिर जब 253 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो मिला 11 और 23। सो दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13,915 एंड इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 11 raised to power 2 and 23। तो 5 into 11 raised to power 2 into 23 is the right answer। so this is the correct option for this। और इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो कि हमने छोटी क्लासेस में किया भी है उस तरह से भी इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। हमने देखा अभी 13915 को हम जब 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2783। व्हेन वी डिवाइड दिस नंबर बाय 11, क्योंकि इसके अलावा किसी और से डिवाइड होगा नहीं, वी गेट 253। अगेन वी डिवाइड इट बाय 11, वी गेट 23 and 23 is a prime number, so it can be divisible by only 1, so these are the prime factors। 13,915 is equal to 5 into 11 raised to power 2 23। तो यही हमारा आंसर आ गया है यहाँ से। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो या फिर आप इस फैक्टर ट्री की हेल्प से भी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्चुअली। In this question what we have given, we have a situation in which a seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects। The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108। देखो नंबर फिर से आ गए, जो पीछे आए थे नंबर यहाँ पर फिर से आ गए। तो एक सेमिनार हो रहा है और यहाँ पर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स और ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। इन ईच रूम ऑफ सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन सेम सब्जेक्ट, हैंस maximum number participant that can be accommodated in each room are। देखो हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट हैं, हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, 3 सब्जेक्ट है। हिंदी इसमें 60 हैं, इंग्लिश इसमें 84 है और मैथ इसमें कितने हैं 108। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट हैं और ये पार्टिसिपेंट है। क्वेश्चन कह रहा है इन ईच रूम the same number of participants are to be seated and all of them being in same subject। हमें एक रूम में इन ईच रूम, हमें जितने भी रूम हमारे पास 10 हो चाहे 12 हो चाहे 15 हो चाहे कितने भी रूम हो, हमें हर रूम में क्या करना है, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की सीटिंग करनी है। ठीक है, उसके अलावा सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, सेम सब्जेक्ट के भी होने चाहिए। यानी अगर फर्स्ट रूम में सब हिंदी के बैठे तो हिंदी के ही होंगे, सेकेंड रूम में इंग्लिश के बैठे सब इंग्लिश के ही होने चाहिए। लेकिन ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि दोनों रूम में बराबर बराबर बैठे हो। सो मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम आर, ये कितना होगा। अब ये निकालने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो हिंदी के 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, अब इन 60 को हम डिवाइड कर सकते हैं 10 10 10 10 10, 1 2 3 4 10 रूम, 6 रूम लेके 10 पार्टिसिपेंट बैठा सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि जो 84 पार्टिसिपेंट हैं मैथ्स के वो 10 में नहीं बट सकते।
बिकॉज अगर हम 10-10 में बांटेंगे तो लास्ट में हमारे पास 4 पार्टिसिपेंट बच जाएंगे, जो कि हमारे सिचुएशन के अगेंस्ट है, क्योंकि सिचुएशन कह रही है इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ दैम बीइंग इन सेम सब्जेक्ट। इसका मतलब अगर हमने हिंदी के 60 पार्टिसिपेंट को 10-10 के ग्रुप में बांटा और 6 रूम में बैठाया, तो हम 84 को 10-10 के ग्रुप में बांट के इक्वल नहीं बांट सकते। सिमिलरली 108 को भी नहीं बांट सकते। तो हम एक रूम में कितने लोग लें जिससे हमारे ये 60, 84 और 108 ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और हर रूम में इक्वल नंबर आए। इसका मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो 60 को भी डिवाइड कर दे, 84 को भी डिवाइड कर दे और 108 को भी डिवाइड कर दे। तो वो नंबर क्या हो सकता है? दैट नंबर विल बी कॉमन फैक्टर। अब 60, 84 और 108 के कॉमन फैक्टर क्या हो सकते हैं? ये तीनों के तीनों नंबर 1 से कट जाएंगे, तो 1 फैक्टर है। 2 से भी कट जाएंगे, 4 से भी कटते हैं, हम जानते हैं। ये नंबर 6 से भी कटते हैं, ये नंबर 12 से भी कटते हैं, ये नंबर इसके अलावा शायद और किसी से नहीं कटेंगे। अगर आप इनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर इनका नहीं आएगा। ठीक है, तो 12 क्या हुआ इनका? HCF हुआ। 12 क्या हुआ इनका? HCF। सो इफ़ यू फाइंड HCF, तो अगर 12-12 की सीटिंग करें तो हिंदी वालों के कितने रूम हो गए? देखो, अगर 12-12 की सीटिंग की तो हिंदी वालों के हो गए 5 रूम। अगर 12-12 की सीटिंग की तो इंग्लिश वाले जो 84 हैं वो कितने रूम में चले जाएंगे? 7 रूम में चले जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इंग्लिश के 84 7 रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। हिंदी के जो 12 है वो कितने रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गए? 5 रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और मैथ्स के जो 108 है, अगर 12-12 की सीटिंग करें इनकी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 रूम में ये चले गए। तो 7 रूम में इंग्लिश के पार्टिसिपेंट और 5 रूम्स में हिंदी के पार्टिसिपेंट और 9 रूम्स में मैथ्स के पार्टिसिपेंट। अब देख सकते हैं आप कि हमने 12-12 की सीटिंग कर दी है, तो सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैं, हर रूम में सेम सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट बैठे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम हर रूम में 12-12 पार्टिसिपेंट बैठाएं तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो ये 12 हमने क्यों निकाला? बिकॉज ये 12 जो है ये 60, 84, 108 इनका HCF है। दैट इज़ द रीज़न। अब देखो, ये करते करते हमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट? कितने कम से कम रूम चाहिए? तो क्योंकि हम 12-12 की सेटिंग ही हमें करनी पड़ रही है, उस हिसाब से हमारे कितने रूम लग रहे हैं? हिंदी के लग रहे हैं हमारे पास 5 रूम्स, क्योंकि हिंदी के 60 पार्टिसिपेंट हैं। हर रूम में हमने 12-12 बैठा है, तो 12 5 60, तो 5 रूम हो गए हिंदी के, तो 5 तो हो गए हिंदी के। और हमने देखा 84 पार्टिसिपेंट हैं किसके? इंग्लिश के, और उनके 12-12 की सीटिंग करनी है तो वो 7 रूम्स हो जाएंगे। और 12-12 की सेटिंग करनी है मैथ्स के पार्टिसिपेंट की, उनके हो रहे 9 रूम। टोटल रूम कितने आ गए? दैट इज़ 21। सो दिस इज़ द आंसर 21। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द LCM ऑफ दिस? ये हमने पहले भी निकाला था क्वेश्चन नंबर 2 में, फिर भी निकालते हैं इसके ऊपर इसको। तो LCM निकालने के 2-3 तरीके हैं। क्लास 10th में हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो उसको हम करते हैं। तो 60 को हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, 10 into 6, this can be done as 2 into 5, 2 into 3, so 2 into 2 into 3 into 5, 84 को हम लिख सकते हैं की तरह, that can be done as 2 into 2 into 3 into 7। ठीक है, 2 to the 4, 4 to the 12, और 108 को हम लिख सकते हैं, तो that will be equal to 2 to the 4, 4 3 the 12, and 3 3 the 9. So LCM will be highest power of each prime factors. तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? 5 भी इन्वॉल्व है, 7 भी इन्वॉल्व है। 2 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 की पावर 2। 3 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है,
तो 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, 5 की पावर 7 की पावर 1, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4 इंटू 27 इंटू 5 इंटू 7, और ये कितना आता है हमने पहले भी निकाला था, 27 इंटू 5 इंटू 7, दैट विल बी इक्वल टू 3780, ये 3780. This is the answer of this question. LCM निकालने का तरीका. Now last, the product of HCM and LCM. अभी हमने LCM कितना निकाला, 3780, और HCF कितना आया था हमारा 12. इन दो को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45360. और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, पहले भी आया था. 108 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, तो कैसे हो गया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108. और एक तरीका देख लीजिए तो करने का, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. So 2 raised to power 2, 3 raised to power 3, 2 raised to power 2, 3 raised to power 3. This is the correct answer of this question. 2 raised to power 2, 3 raised to power 3. So that is all for today. हमने रियल नंबर चैप्टर के 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किए, जिनमें हमने HCF को सीखा, LCM को जाना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझा, किस सिचुएशन में HCF निकालना है ये समझा, और किस सिचुएशन में LCM निकालना है इसको समझा. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इसी तरह से आप इसको देखते रहिए, करते रहिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स. थैंक यू.